Everyone, and welcome to the next video of sets. Today we are going to learn what is the meaning of subset. तो basically subset होते क्या है? एक ऐसा सेट जो कि जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स दूसरे बड़े वाले सेट में है, तो उसको छोटे सेट को बोला जाता है कि वो बड़े वाले सेट का सबसेट है. यानी कि a set is said to be a subset of set B if every element of A is also there in every element of B. So I can say A is the subset of B. But children, B is not the subset. What is the sign of not the subset? Subset लिख के उसे cancel कर दीजिए. Not the subset of A. So A और B को स्पेशल नाम दे दिया गया है, right? वो आपको पता होना चाहिए. Have a look here. It is already given. A is the subset of B if all elements of A are there in the B, right? One of the set is known as, let me show you here, set B. A is known as the proper set subset of B, and B is said to be the superset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के अंदर कंटेन्ड है. मतलब अगर मैं बोलूं A is the subset of B, let A and B be two sets. If A is the subset of B, then A is said to be the proper subset of B, and B is called the superset of A. This is what is meant by superset and proper subset. Okay. Now let's take an example. इन्होंने बहुत अच्छे से example से समझाया है कि A के अंदर 1, 2 and 3 है and B के अंदर 1, 2, 3 and 4 है. तो A के सारे elements क्योंकि B में present है, तो हम बोलेंगे A is the proper subset of B and B is the superset of A. This is how subset, proper subset and superset is defined. Okay. Now, what is a singleton set? If set A has only one element, we call it singleton set. यानी कि अगर मैं लेती कि A के अंदर, या A नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं कि C एक और सेट है जिसके अंदर सिर्फ 1 है, तो आपको दिख रहा है जो C है, that is the subset of B. So C is also said to be a singleton set. All right, children. And आपको क्या फैक्ट जानने हैं कि phi जो है null is subset of every set and set is also the subset of every set. Obvious है, ये तो true ही है, right children? अब हम बात करते हैं कि what do you mean by intervals? Next concept. अच्छा, ये भी आपको पता चल होना चाहिए कि all natural numbers are subset of integers. Integers are subset of rational numbers, right? Rational numbers are subset of real numbers. Then what is T? T is here, it is said to be set of irrational numbers. All irrational numbers are also subset of real numbers, but natural number is not the subset of irrational numbers. Obviously जो natural numbers हैं वो उसके अंदर नहीं आ सकते. All right, let's talk about intervals. What do you mean by intervals? देखिए बेटा, दो तरह के intervals होते हैं. One is closed interval, जिसको जाना जाता है close bracket में symbol के form में, and इसे ऐसे denote किया जाता है x belongs to close interval AB. इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है वो greater than equal to A है but less than equal to B है. और इसको अगर आपको नंबर लाइन में ऐसे डिनोट करना है, तो जो x है वो a और b के बीच में लाई करता है. x कैन बी एनी वैल्यू इंक्लूडिंग a एंड b. दैट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ क्लोज सेट. लेकिन ओपन इंटरवल को अगर डिनोट करना है, x belongs to open interval AB. कई बुक्स में ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट से गिवन है और कई बुक्स में ओपन इंटरवल जो है वो ऐसे गिवन होता है, राइट? सो दोनों तरह से जो इंटरवल्स है वो ओपन माने जाते हैं. और इसका मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x is between a and b but it cannot be ab. यानी कि x की वैल्यू greater than a है, less than b है, लेकिन ab नहीं हो सकती. अगेन अगर आपको इसे नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो ये जो सर्कल्स बनेंगे वो सॉलिड नहीं बनेंगे, वो एम्प्टी सर्कल बनेंगे. दैट इज द सिंबल ऑफ ओपन इंटरवल.
ओके, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज भी हो सकती है ऑब्वियसली। अगर मैंने ऐसे लिखा है ए बी, तो अंडरस्टूड है जो एक्स है वो ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से इक्वल भी हो सकता है और बी से कम भी हो सकता है। सो दैट इज हाउ इट विल बी डिनोटेड। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ ओपन इंटरवल के साथ नॉन शेडेड सर्कल लेना है और बी के साथ सॉलिड सर्कल लेना है। दैट इज हाउ यू राइट इंटरवल। ऑल राइट, अगर मुझे इंटरवल को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, देखिए, x where x belongs to real number and the real number is between a and b। अगर मैं बात करूंगी क्लोज इंटरवल की, अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूंगी तो जो साइन है वो इक्वल टू का नहीं आएगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा। राइट, अब है इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स फॉर अ गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट। तो बेसिकली कोई नई डेफिनेशन नहीं है, लोग बोलते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, बट इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सबसेट। आपको सबसेट मैंने सिखाई दी है। तो सपोज करिए ए एक सेट है जिसमें 1 and 2 एलिमेंट्स हैं, तो जो पावर सेट ऑफ ए है उसमें क्या क्या हो सकता है? पहले, phi is the subset of each and every set. A very very important point to note is phi is never written in curly bracket। इसका मतलब हो जाता है एक एलिमेंट है, तो this is never, phi means null। So one is phi, the other one is single elements ले लो 1 and 2, and the other one is the complete set। So आपने देख लिया कलेक्शन ऑफ पावर सेट में क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इसके फॉर्मूला क्या है कि सपोज करो कि सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 की पावर m। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो आपने चेक कर लिया, देर आर 1 2 3 एंड 4 एंट्रीज इन द पावर सेट ऑफ ए। नाउ व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? जैसे सपोज पिछला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पिछली स्लाइड में चलते हैं, जिसमें मैंने सेट सी भी ले लिया था और ए भी है और बी भी है। ये जो सुपर सेट होता है जिसके अंदर के सारे सेट प्रेजेंट होते हैं, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। Let me show you the definition। Natural set of natural numbers and its subset is all set of all prime numbers and then set of all even numbers and so forth। So in this basis अगर मैं a b c से डिनोट करूं, I can say r is यानी कि जो set of real numbers है उसके अंदर सबके सब included है। मतलब उसमें natural numbers भी आते हैं, उसमें prime numbers भी आते हैं, उसमें even numbers भी आते हैं। So that is how we denote a universal set, and the symbol for universal set is this। वो एक्चुअली में यू इसलिए नहीं लिखा जाता, वैसे कई बुक्स में यू भी लिखा है, क्योंकि यू और एक्चुअल में जो इंग्लिश अल्फाबेट यू है वो सिमिलर हो जाता है। दैट इज व्हाई हम थोड़ा सा उसका कॉर्नर निकाल देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑल राइट, लेट्स डू द एक्सरसाइज क्विकली। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स की सबसेट है या सबसेट नहीं है। चेक करिए, लेट मी टेक अ रेड कलर सो दैट इट इज मोर विजिबल। 2 3 एंड 4 क्या इसके अंदर प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, तो सबसेट है। ए बी सी क्या इस पूरे बी सी डी के अंदर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो सबसेट नहीं है। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्या क्लास 11th का जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में इंक्लूडेड होता है? हाँ होता है, यानी कि ये सबसेट हो गया। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। क्या हर सर्कल जो प्लेन के अंदर होता है, क्या उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर होगा? क्या उसमें इंक्लूडेड होगा? नहीं, इंक्लूडेड नहीं होगा। उल्टा होता तो होता, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। क्या एवरी रेक्टेंगल सॉरी एवरी ट्राइंगल जो है क्या वो रेक्टेंगल में कवर्ड होता है? यस होता है, सो इट इज अ सबसेट। सिमिलरली, क्या एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, इज इट अ ट्राइंगल, इज इट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ ट्राइंगल्स? Yes, it is included in the set of triangles, equilateral triangle. So it is again a subset। Then x is a even natural number। क्या जो even natural numbers है वो इंडिजर के अंदर फॉल करते हैं? हाँ करते हैं, तो it is a subset।
राइट चिल्ड्रन, आगे चलते हैं। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ए एंड बी इसके अंदर है, हाँ है, तो ये इसका सबसेट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ सबसेट, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ए एंड ई is included in set of vowels. What is vowels? A, E, I, O, U. So yes, it is a true statement क्योंकि A and E इसके अंदर आता है। 1, 2 and 3 क्या 1, 3, 5 के अंदर आता है? नहीं आता है, तो ये फॉल्स हो गया। A जो है क्या वो A, B, C के अंदर आता है? हाँ आता है, तो ये ट्रू हो गया। A belongs to a set A, B and C. This is a false. This is a very important question, children. अगर belong to sign use करना है तो सिर्फ element आएगा, right, children? We cannot use this symbol with a belong to sign. This is the symbol of a subset. ये true है, but इसके साथ अगर मैं belongs to use करूंगी तो ये गलत हो जाएगा. So you have to remember this fact. Okay? आगे चलते हैं। X is even natural number which is less than 6. Even natural number which is less than 6 में क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और लेस देन 6 है तो सिर्फ यही आएगा। X is a natural number which divides 36. क्या 2 एंड 4 जो है वो 36 को डिवाइड करते हैं? हाँ करते हैं। क्या वो नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो ऑब्वियसली इसके सारे जो फैक्टर्स है उसके साथ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। 30 आप चेक कर लीजिए, 36 किस किस नेचुरल नंबर्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से ऑब्वियसली, 2 से, 3 से भी होता है, राइट, 4 से भी होता है, एंड ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं क्या 2 एंड 4 इसके अंदर इंक्लूडेड है? हाँ इंक्लूडेड है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3,4 is a subset of A. Now 3,4 already एक set की form में present है. This is the thing to note. This is already present in the form of a set. तो अगर मुझे subset use करना था तो एक और curly bracket आना चाहिए था, तो this is a false statement. 3,4 belongs to A क्योंकि 3,4 curly bracket में ही present है, so this is a true statement. अब चेक करिए, यहाँ डबल ब्रैकेट आ गए, एक ब्रैकेट ऑलरेडी था और एक ब्रैकेट सबसेट का आ गया है, तो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 उस सेट के अंदर है? यस दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, नो इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। 1, 2 एंड 5 कर्ली ब्रैकेट में इज अ सबसेट ऑफ ए, यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1, 2 and 5 in a curly bracket belongs to A. Belongs to के साथ ब्रैकेट नहीं आना चाहिए था, no it is a false statement. 1, 1, 2 and 3 is a subset of A. चेक करो, 3 and 4 हमेशा एक साथ आ सकता है, तो this is again a false statement. 5 is the subset of each and every set. Yes, it is a, sorry, 5 belongs to A. No, it is a false statement. 5 is the subset of each and every set. Yes, it is a true statement. And can we write 5 in this form in a curly bracket with a subset sign? No, we cannot write it. So this is again a false statement. Write down all the subsets of the following sets. तो A का जो सबसेट है वो क्या होने वाला है? सिर्फ A होने वाला है, राइट, एंड आपको पता है 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, राइट। सो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो आपने चेक कर लिया, ये सबसेट्स आ गए। अब A और B के सबसेट्स क्या आएंगे? अगेन चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी कि 4। चेक कर लेते हैं, एक सिर्फ A, एक सिर्फ B, एक A एंड B द सेट इटसेल्फ, और एक 5। ऐसे ही 1, 2, 3 का चेक करते हैं। 1, 2, 3 तो आना ही आना है, 5 भी आना ही आना है। सिंगल करते हैं, 1, 2 एंड 3 कर्ली ब्रैकेट, फिर पेयर करते हैं 1 एंड 2, फिर 2,3 एंड 3,1। अब काउंट कर लेते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आना चाहिए था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यस दैट्स राइट। 5 सिंगल जीरो एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 0 1, सो 5 इज द सबसेट ऑफ 5 ओनली। तो इसका आंसर सिर्फ 5 ही आएगा लास्ट पार्ट का।
That is question number 4. How many elements P of A has power set of A where A is 5? Again, आपको आंसर इसका पता ही है, only 1. That is 2 to the power 0, right? All right. Write down the following. Write down the following as intervals. इसको as a interval की फॉर्म में लिखना है, तो obviously interval x के साथ जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें 4 के साथ इक्वल टू साइन नहीं है, तो -4 एज इट इज आएगा, क्योंकि उसके साथ इक्वल टू साइन नहीं है, और 6 के साथ इक्वल टू साइन है, तो वो जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, क्लोज इंटरवल। सिमिलरली अगले वाले में -12 के साथ भी नहीं है एंड -10 के साथ भी नहीं है, दोनों ओपन ब्रैकेट में आएंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 0 के साथ इक्वल टू साइन है, तो 0 क्लोज ब्रैकेट के साथ आएगा, और जो 7 है वो ओपन के साथ आएगा। अगेन फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, उसमें 3,4 दोनों के दोनों ही क्लोज्ड में आएंगे, क्योंकि दोनों के साथ इक्वल टू का साइन है। हमेशा याद रखिएगा लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट लिखना है, उल्टा मत लिख दीजिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, 7 एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखना है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इंटरवल्स क्या डिनोट करती है वो देख लीजिए, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। दैट इज आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए दिस इज कॉमन, सिर्फ ये इंटरवल्स चेंज होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। अगले के लिए x इज ग्रेटर देन 6 क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, और लेस देन इक्वल टू 12 क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। आगे लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5 क्योंकि -23 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके साथ 5 के साथ क्लोज ब्रैकेट है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Write the universal set which you would propose for each of the following. Set of all right triangles and set of isosceles triangles. ये दोनों किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली ये सेट ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे या सेट ऑफ पॉलीगन्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पॉलीगन्स क्या होता है, क्लोज फिगर विद मोर देन 2 साइड्स, राइट? तो उसमें 3 साइडेड फिगर्स ऑलरेडी कवर्ड होते ही हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। गिवन सेट्स A which is 1, 3 and 5, B 2, 4 and 6 and C is this, which of the following may be considered a universal set? यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने क्या समझाया था, एक ऐसा सेट जिसमें हर एक सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो A के एलिमेंट्स इसके अंदर, C के अंदर है नहीं, अच्छा हमें इसमें से नहीं देखना, हमें ऑप्शंस में से नजर मारना है, मतलब ए बी और सी के लिए इन चारों में से कौन सा जो सेट है वो यूनिवर्सल है। डोंट रीड द क्वेश्चन क्विकली, ओके, धीरे। सो चेक करिए, ये सारे एलिमेंट्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, ये सारे के सारे होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा हो सकता है। सो आंसर इज ओनली द थर्ड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 8 मिसिंग है, राइट चिल्ड्रन, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर 0 मिसिंग है, राइट? सो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। विल कंटिन्यू, अगर आपको फिर भी इस एक्सरसाइज में कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।